ہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل بدال راجوری مز یہ اچانک 17 لوکن ہند موت واقع سپدن ست علاقس مز خوف دہشت لوکن مز وچھن تو مرکزی سرکار طرف علاقس مز اخ ٹیم تہ سوزن آئی تہ آز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ علاقہ دور کورمت یتھ دوران تمن سول تو پولیس انتظامیہ افسر تہ موجود اس دورس دوران یہ تمو لواقین ست تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کور تت تمو لوکن وونمت ز معاملس حوالہ اصل حقائق برہ کن ان باپت پریت کان قدم تلنا آمت یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یہ کت باون لائق زی یہ نائب وزیر اعلیٰ سند طرف علاقہ دور کرنس علاوہ محکمہ صحت تو پولیس طرف کئی ٹیم علاقس کن گوڑے سوزن آئی تت آز صورت حال سام ہینہ باپت پانہ عمر عبداللہ بڈال واتمت یت زن لوکن مز یقین پیدا کرنے یہ سرکار ات صورت حالس مز تمن ست گورنمنٹ ہومیوپیتھک کالج کٹھوس مز آز پروگرام سائنس کرنا آمت یت مز وزیر صحت سکینہ یتو کالج انتظامیہ تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ وزیر موصوفن کالج طالب علمن ہند ناو وقف کور تت تمو طالب علمن تو جموں کشیر ہندن لوکن مبارکباد پیش کران ورمت یہ کالج پنہ نوعیت گۄڈنیُک کالج جموں کشیر مز تو یہ کالج قائم سپدن ست وات جموں کشیر ہندن طالب علمن سٹھائی راحت تو فائدہ جو آپ سب کے لیے شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی اور مجھے یقین ہے مجھے بھروسہ ہے کہ یہ سفر جو آج یہاں پہ شروع کیا ہے آپ نے ایک نئی شروعات کی ہے اس سفر میں آپ آگے بڑھیں گے اور جموں کشمیر کے لیے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ جو نیا کالج جو آج تک جموں کشمیر میں نہیں ہے جس کی آج ایک بیچ جس میں 63 اسٹوڈنٹس ہیں جس کی شروعات آج سے ہوگی اور یہاں تک پہنچنے میں اس کالج کو بنانے میں جن سب کا کنٹریبیوشن ہے چاہے وہ ہمارے ایکس ڈائریکٹر موہن سنگھ جی ہو انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں آیوش میں تو انہوں نے ایک نئی دشا دی ہوئی ہے اور نئے نئے پروجیکٹس جو انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں آج کچھ پروجیکٹس یہاں پہ ختم ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے لیکن کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے باقی جنہوں نے چاہے وہ انجینئرس ہیں جنہوں نے اس کو بنانے میں کام کیا ہے اس کالج کو چاہے وہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں جنہوں نے اپنا رول کیا ہے اور سب کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور گورنمنٹ آف انڈیا نے جس طرح سے اس کی شروعات یہاں کی ہے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کالجز کی اور زیادہ ضرورت ہے ہم ضرور ان کو لکھیں گے پروجیکٹ کریں گے اسی طرح کشمیر میں بھی ایک کالج ہونا چاہیے جس کی بہت اہم ضرورت ہے جموں میں ایک شروعات ہوئی اچھی شروعات ہوئی لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آگے ایک پروجیکٹ ایک پرپوزل جو ہے وہ ضرور پٹ اپ کرے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا کے تاکہ آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے اپنی تعلیم اپنے پروفیشن کو کمپلیٹ کرنے میں صوبائی کمشنر کشمیر سند صدارت مز آج 16 جنوری تقریب حوالہ میٹنگ ہند سائنس کرنا آمت یت مز پولیس فوج CRPF تو سول انتظامیہ کیو افسرو شرکت کر میٹنگ دوران یہ انتظامن ہند جائزہ ہینہ آو تت افسرن ہدایت دن آمت زِ تم گژھن مکمل انتظام کرنس حوالہ جائزہ ہن یت زن امچہ تقریب مز شرکت کرن والن لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین
IGP कश्मीरन 16 जनवरी तकरीब हवाले कत करान वोनमुत यह तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करना आमुत यिल जन मिलिटेंसी तो मनशियातस हवाले तिमो कत करान वोन ज यमन दशवनी मसलन हवाले फोर्सेस एजेंसियों तरफ रलित मिलित काम करने युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज त आसानी सपदे। देखिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है और इस दिन कश्मीर वैली के मुख्तलिफ जिलों में परेड और उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका इनकाद किया जाता है, जिसमें जो है जनरल पब्लिक भी शिरकत करती है। तो इसी असना से इसमें यहाँ पे हर एक ज़िले में सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और ख़ासकर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज और इस तरीके के जो बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। शहर श्रीनगर भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है और यहाँ पर भी मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म पुलिस और जो यहाँ पे अर्धसैनिक बल जो हमारी मदद के लिए रहते हैं उनकी टुकड़ियाँ जो हैं यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट में शुमाल की जा रही हैं। तो लिहाजा काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए। देखिए जो कल का वाक़या है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि वहाँ पर जो है टेररिस्ट के छुपे होने की आशंका है। तो इसी सिलसिले में काफ़ी देर से वहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी था, तो जिसके दौरान जो है एक जगह पे सर्च करते हुए अंदर से गोलीबारी हुई और उसके बाद गोलियों का तबादला हुआ। तो ये जो कि वो ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया। देखिए जो मंशात की प्रॉब्लम है उसमें जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड जो लीगल जो कार्रवाई है वो की गई है। तो लिहाजा इस टाइप के अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो है पुलिस की नज़रों में आते रहते हैं और उसके कारण हम भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं या जहाँ पे इंटरवेंशंस हैं या जहाँ पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए उससे उन चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा लर्निंग पॉइंट्स भी रहते हैं। तो लिहाजा पुलिस जो है इस प्रॉब्लम के हर आयाम पे नज़र रखे हुए है और जिस भी टाइप का मोडस ऑपरेंडी होगा तो जाहिर सी बात है हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। देखिए 26 जनवरी वादी कशीर हंजन सयाती जायन पे ये आजकल सयान हुंद बोड़ तादाद वुचन तत एडी टूरिज्मन अमे हवाले कत करान वोनमुत सयाती मुकाम पहलगामस मज ये मुल्की सयान हुंद आग बोड़ तादाद मौजूद तत गैर मुल्की सयाह ते पहलगाम कुदरती खूबसूरती सहित लुत्फ अंदोज सपदन। हमारा विंटर टूरिज्म का जो यहाँ पे एम है, एम्बिशन है, वो दिन ब दिन हम टारगेट अचीव करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट अराइवल जो है वो कभी उसने डिप नहीं दिखाई इस मंथ में, इनफैक्ट राइज ही हो गया है। जैसे हमारा एवरेज जो टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे रहता है वो 3000 से 3500 तक है, जिनमें ऑलमोस्ट 80 to 100 फॉरेनर्स भी होते हैं और मेजर पोर्शन जो फॉरेनर्स का रहता है वो मलेशिया एंड थाईलैंड रहता है। और हमारी प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सारे जो विंटर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे हीटिंग अरेंजमेंट है, एंटीसिकेड कुछ शूज़ या एंटीसिकेड एलिमेंट्स की बात करें वो हमने ऑलरेडी डायरेक्शंस पास किए हैं कंसर्न होटेलियर्स को, हॉस्पिटलिटी फंक्शन फैसिलिटीज़ को, कि वो सारी फैसिलिटीज़ मैसर रखें ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सर ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि होटेलियर्स भी तैयार थे इस साल, लेकिन इस साल काफी अच्छी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है पहलगाम में, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ावा होगा? अगर स्नोफॉल जैसे कि प्रेडिक्शन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेडिक्शन भी है, कुछ स्नोफॉल गिरने का इम्कान है, तो स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूरिस्ट अराइवल में। और बुकिंग्स तो कैंसिल नहीं हुई है रिसेंट जो डेज में, कोई हमारी एज सच कोई मेजर बुकिंग्स कैंसिल नहीं हुई है। ऐसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो फुटफॉल है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड तरफ आज टाउन हाल कपवारिस मज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलावा नौजवान कोरियो शिरकत कर। अत मौके पे मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले नौजवान कोरियन जान दिन आए तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जन बाख्तार तो बावकार बनाने हवाले मरकजी सरकार तरफ
कया स्कीम मुतारिफ करना आमच तो स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने यिवान युथ जन ज्यादा खोत ज्यादा जन यमन स्कीमन हुंद फायदा तुलित हेकन। आप अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करेंगे। चाहता हूं कि हमने जो आज यहाँ का ये अवेयरनेस प्रोग्राम और आगाही प्रोग्राम का जो हमने इनेकाद किया था, इसका मेन मुद्दा व मकसद जो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड JNK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वसातत से जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं उनके बारे में कैसे हम अपने अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, हमारे आर्टिजन्स और जो यहाँ के दूसरे अफराद हैं उनको हमने आज ये इस स्कीम के बारे में पूरी तरह हमने उनको आगाही दी। और इसमें हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आए थे, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब आए थे और यहाँ पे बैंक्स की नुमाइंदगी थी जिसमें SBI, PNB, ग्रामीण बैंक, JNK बैंक तो था ही, तो बैंकर्स भी था। एक ज़बरदस्त इंटरेक्शन सेशन हुआ तकरीबन 3 घंटे में और जिसमें बच्चियाँ जो थी और जो लड़के थे वो भी काफ़ी खुश हुए कि इस तरह का प्रोग्राम हुआ और जहाँ पे जो उन्होंने सवालात किए और जिस तरह की उनको आगाही चाहिए थी वो हमने फराहम करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल हमने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ऑलरेडी 755 एप्लीकेशंस जो हैं वो बैंकों को भेजी हैं और उसके अगेंस्ट 354 एप्लीकेशंस जो हैं जिसका मार्जिन मनी आउटले 8 करोड़ 64 लाख रुपए है, वो हमने ऑलरेडी ये बैंकों ने सैंक्शन करी है। जहाँ तक PMEGP का सवाल है, ये जो है ये गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से ये सब्सिडी मिलती है और ये दोनों सब्सिडियाँ जो है ये डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में आती है। ये DBT है डायरेक्ट और वहाँ पे ये 3 साल रहती है। तो वहाँ पे आपको जैसे पता है कि इस साल 2 बार यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट रहा, उसकी वजह से थोड़ी तवालत हुई है। द इशू हैज़ बीन टेकन अप एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे CO साहब ने भी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी ये मसला उठाया है और ये मसला भारत सरकार से उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME KVAC से उठाया है। इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ताकि सब मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ आज खान साहब बडगमिस मज जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमत यथ मज महकम के जिम्मेदार अलाव मुकामी ट्रांसपोर्टर शिरकत कर। अत मौके पे ट्रांसपोर्टरन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आये तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युथ जन सड़क हादसन मज कमी अन्न यी। देखिए, आप जैसे जानते ही हैं कि ये हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे जाए, जितनी भी हमारी कंस्टिट्यूएंसीज है, जितने भी हमारे स्टैंड है वहाँ पे जाए। लास्ट टाइम हम चाडोरा गए थे, आज हम खान साहब आए। आज हमने इनमें भी सब में अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि आप सब लोगों को कैसे गाड़ी चलानी है और रोड पे हमें कैसे सेफ्टी मेंटेन करनी है। हमारे पास शिकायतें आते हैं कि जो ड्राइवर साहबान है वो ओवरलोडिंग करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, स्पीड एक्सीड करते हैं, कभी कभी वो पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेव भी करते हैं। तो इन सब बातों को लेके हमने आज इनको अवेयर किया और हमें उम्मीद है कि ये हमारी बातों का पालन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे बडगाम जो डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह जहाँ पे भी स्टैंड है हम वहाँ पे ड्राइव चलाएंगे और हम आपको भी अवेयर करेंगे कि आप हमारी जो ये ड्राइव्स है ये आप लोगों तक पहुँचे। मेंबर असेंबली कोकरनाग चौधरी जफर खटानान आज चेरपुर इलाकस मज अपग्रेड करना आमतिस रिसीविंग स्टेशनस इफ्तिताह कोरमुत। यथ दौरान अत मुतलक महकमक अफसर तो मकामी लूक ते मौजूद स। अत मौके पे लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव यह कदम तुलने सत वात लूकन सटई राहत। तत मेंबर मौसूफन वोनमुत लूकन सत करना आमत वादियन हन हन पूरे करने युथ जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने जो हमारे PDD के यहाँ मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमारे AE हैं कौसर साहब और हमारे ये JE साहब, XCN, AEE, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कोशिश की कि बहुत छोटे पीरियड में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिक्कत थी लोगों को इस रिसीविंग स्टेशन से। जो हमारा ऊपर वाले एरिया का छतरगुल वगैरह का पैनल चलता था उसमें ये बार बार ट्रिप हो जाता था, उसमें कोई पैनल लगाने थे तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन फिर पिछली बार जब बर्फ़ पड़ी, लोगों ने शोर भी किया, मैं भी यहाँ आया तो मैंने इनको बहुत मजबूर किया और मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने दिन रात एक करके आर्जी तौर के ऊपर फ़िलहाल लोगों की उस समस्या को हल करने के लिए एक जुगाड़ बनाया।
अभी आज इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह नहीं है। इसका इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के बाद जब इसमें नया पैनल लगेगा तो उस वक्त हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल लोगों की ज़रूरत को देखते हुए काम चलाने के लिए इन्होंने किसी न किसी ढंग से ये हमें एक सिस्टम बना कर दिया, जिससे लोगों को, और मैं बड़ा इनका मशकूर हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे इलाके के लोगों की एक बड़ी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स तहत ये नीजबल हेल्थ सेंटर बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करनस पे गोडनिकिस नंबरस पे मुल्कस मज आव तज महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिम मरहलवार तरीकन तहत हेल्थ सेंटर हज हौसला अफजाई करने तो नीजबल हेल्थ सेंटर आज जुमरस मज इन बापत मुकामी लूकन तो महकमे सेहत बापत खुशी हुंद मुकाम दिया। चाहते हैं कि हमें हमारे गांव का आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव जो हिंदुस्तान में नंबर 1 जिसका हेल्थ वेलनेस सेंटर आ गया, हमारा गांव पूरे हिंदुस्तान में छा गया है और ये हमारी मेहनत का नतीजा, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, अगर इसमें किसी का हाथ है पीछे तो LG मनोज सिन्हा साहब का है, जो हमेशा जो मेरे गाँव खुद विजिट किया बैक टू विलेज में, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और नंबर 1 सरपंच बनने में, और ख़ासकर जो मेरा हेल्थ वेलनेस सेंटर है इसको चलाने में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है। यहाँ BMO CMO जो साहब का रहे या DC साहब कोई भी, और ख़ासकर अगर मैं किसी को मुबारकबाद क्रेडिट जाता है तो वो यहाँ के हमारे डॉक्टर साहिबा है और हमारे यहाँ जो नर्सेज है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़, और ख़ासकर जो हमारी आशा है वो 24 घंटे अवेलेबल रहती थी, उन्होंने इस हॉस्पिटल को मेंटेन रखा है। खुशी की बात है, मसरत की बात है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। मतलब उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं और नेशनल लेवल से टीम आके चेक करती है। होता क्या है कि हमें जो हमारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आते हैं कि हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उनमें क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी के जो पैमाने हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको चेक करने के लिए पहले तो ब्लॉक लेवल टीम जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल जाती है, फिर स्टेट लेवल जाती है, उसके बाद नेशनल लेवल पे होता है उसका असेसमेंट। जो ये सारे स्टेजेस क्रॉस करे वो हेल्थ सेंटर जो है वो NCOS सर्टिफाइड हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट के सारे पैमाने जो हैं वो फुलफिल हुए हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमने तो बहुत सारे सेंटर्स का रिकमेंडेशन किया है, लेकिन अभी उन पे काम करना बाकी है, हम उन पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो पहला हमारा अभी जो विज़िट हुआ नेशनल टीम का, उन्होंने जो वहाँ पे असेसमेंट किया, उसमें हमारा जो AAM सब सेंटर नस्बल है, तो वो खुदा के फजल से हमारा सिलेक्ट हो गया है। वो गांग त्रालियत कुदरती खूबसूरती से मालामाल तो मौसम गर्मास मज मुख्तलिफ इलाकों पर लूक सैर तफरी बापत गांग वातन तच इलाके त्राल के जीहस लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज गांग गि सयाती नक्शस पे अन्न यून युद्ध जन मुकामी लूकन तन चोर जेनुक मौके फराहम सपदे। यहाँ हमारे इलाके थराल में बहुत खूबसूरत सेहत अफजा मकान में इनमें गांग भी एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ 110 के करीब चिनार के दरख्त हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सूखते जा रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं। और वो ब्यूटी जो है वहाँ अगर चाहते तो वहाँ एक पार्क बन सकती थी, फ्लोरिकल्चर वालों के ज़रिए से उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी और सरकार की तरफ से भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हो गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहे हैं। इस वक्त तो कश्मीर में भी ऐसे हालात है कि तवज्जो नहीं दे रही है चिनार की दरख्तों की तरफ, जो हमारी एक कश्मीर की खूबसूरती का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि चिनार का दरख्त जो है वो कश्मीर के दरख्तों में एक ताज की हैसियत से, एक बादशाह की हैसियत से यहाँ था, जिसकी खूबसूरत छाँव में बैठकर लोग आराम किया करते थे। और जब इसकी तरह तवज्जो ही नहीं दी, ना फ्लोरिकल्चर वालों ने ना हॉर्टिकल्चर वालों ने, तो चाहिए था कि इसकी तरह तवज्जो देना और इसकी खूबसूरती को बढ़ाना, एक पार्क वहाँ तैयार करना ताकि यहाँ लोग आके बैठते उठते, जो यहाँ की आबादी है
वो भी लुत्फ लेते, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये जो चिनार के दरख्त हैं ये दिन ब दिन सूख रहे हैं और इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो सरकार से हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करके फौरी तौर पर फ्लोरिकल्चर वालों, हार्टिकल्चर वालों की तवज्जो जो है वो इसकी तरह दिलाई जाए ताकि ये दरख्त सूख ना पाए। और इसकी जो ब्यूटी है, इस गाँव की ब्यूटी है और मैं समझता हूँ इलाके त्राल की एक खूबसूरत जगह है, ये तब और बर्बाद ना हो जाए। वाहिद जगह है इलाके त्राल। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्तियन मज यन सत आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तक काचीपुरा राजपुर पुलवमस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये आज सुबह मकामी लोगों तरफ जंगली जानवर बस्ती मज वुच यदि वाइल्ड लाइफ महकम के एहलकारों तरफ ये जानवर काबू करने की कोशिश करना आई ताहम तम नाकाम सपदमित यम किन इलाकस मज रोजन वालन लूकन मज खौफ दहशत वुचन ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गसन फेरनस थोरनस एहतियात वरतन युत जन कह हादस पेश घास डालते हैं। उसी वक्त मैं यहाँ पे आया था और यहाँ जब घास निकालने की कोशिश की उसी वक्त मैंने ये देखा था ये यहाँ पे है। फिर मैंने वाइल्ड वालों के साथ रब्ता किया, उनको बुलाया और उन्होंने भी बहुत कोशिश की मगर नाकाम हो गए। हाँ खोफता है क्योंकि इसने पहले भी नुकसान किया था यहाँ एक घर वालों को, उसकी वजह से खौफ है। क्या अपील रहेगी आप? हाँ अपील यही रहेगी कि इसको काबू में आना चाहिए। और लाएमल यही है क्योंकि इनको डांट लगा है तो ऑलमोस्ट ये 10-15 मिनट के बाद ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पे गिर जाएगा। तो हम ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह, होप सो कि ये कहीं पे हमें मतलब हो जाए कहीं पे लोकेट। तो लेकिन डांट इसको लगा हुआ है और हमारा एक जो गनमैन था वो उसको भी थोड़ा सा जख्म आ गए, उसने उसको थोड़ा सा पंजा मार दिया। तो इसी की वजह से, लेकिन उसको कंफर्म है कि मतलब मैंने डार्ट को भी चेक किया, डार्ट्स लगे हुए हैं। आवाम से ये अपील है कि जब तक ये इसको हम लोकेट नहीं करेंगे तब तक ये अपने अपने घरों में बैठे। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आज ही इंशाल्लाह लोकेट करेंगे, अभी एक आधे घंटे में, क्योंकि हम अभी ढूंढ रहे हैं, लड़के ढूंढ रहे हैं अपने। तो टीम पूरी लगी हुई है, तो कोशिश कर रहे हैं हम उसको लोकेट करने में। नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।